Uh, so, could I start? It is a fine. Today we will be talking about uh, India-China standoff, past, present, and future. As we have seen in the last few days, things are not very good between the two countries. The violent clashes took place 3 days back, which took the life of 20 military personnel who martyred, and from Chinese side as well, but it has not been properly reported how many casualties have. Uh, uh, is it fine? Is it better? आवाज वहाँ पर कम जा रही है तो फुल तो किए हुए अब आ रही आवाज है, आवाज आ रही है। कैसे कैसे पता चला? मैसेज डाले? डाला कहाँ से मैसेज डाले? ऐसा कोई लिखा ना। Okay, so what is, for the last few days and weeks, the two countries, India and China, are on a very and conflicting mood at eastern part of Ladakh, that is called Galwan Valley, where after almost 47 years, the violent clashes took place, which caused, I think, more than 20 lives from the Indian side, and that has not been reported from the Chinese side how many casualties were taking place. But nevertheless, the situation is still very grim. Other military as well as air forces from Indian sides have been intensified, and from China as well, they are also pushed more forces. PLA forces are coming into the hotspot area, that is Galwan Valley. But natural question, certain, if you try to locate and identify the India-China relations and the major conflicts, the recently which we are undergoing on, why did it happen? Why is it Galwan? Why is it Ladakh? The first question is this. We will begin with this trait, and then we will come to identify what are the major threat perceptions for China against India, and what are the threat perception for India against China. Unless until we try to decipher it, declutter it, we will not understand the complex situations between India and China. क्योंकि बाउंड्री डिस्प्यूट, सीमा विवाद दोनों देशों के बीच में 3 कोने पर हैं, ईस्ट, वेस्ट और मिडिल।
अभी वेस्ट में जो समस्या चल रही है, जो अक्साई चीन का लद्दाख का एरिया है, उसके बारे में हम दिल्ली पढ़ रहे हैं। उसके अलावा ईस्ट वाला सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश का है, वहाँ पर 1900 बीच बीच में समस्याएं उठती रहती हैं, लेकिन मेजर 67 में समस्या उत्पन्न हुई थी, फिर 87 में भी समस्या उत्पन्न हुई थी, और हमने देखा ही है कि 2017 में मिडिल सेक्टर जिसे सिक्किम कहा जाता है, जो ट्राई जंक्शन है भारत चीन और तिब्बत का, भारत चीन और भूटान का, वहाँ पर समस्या पैदा हुई। तो बाउंड्री डिस्प्यूट के संदर्भ में क्या दोनों के मुख्य विवाद हैं? अगर हिस्ट्री में हम जाएंगे तो बहुत सारे आलेख आ रहे हैं। देयर आर मेनी राइटिंग्स विच आर एवरी डे विच इज कमिंग इन द डिफरेंट न्यूज़पेपर, जर्नल्स, पीरियोडिकल्स। वो यही बता रहे हैं कि भारत की तरफ से जो सीमा विवाद की लंबाई है वो तकरीबन 3488 स्क्वायर किलोमीटर की है, जबकि चीन कहता है कि नहीं, विवाद केवल 2000 स्क्वायर किलोमीटर की है। यानी आधे पर वो कहता है कि विवाद है, आधे पर विवाद नहीं है। ऐसा चीन क्यों मानता है, जब भारत का कहना है कि सीमा हम दोनों देशों के बीच में तकरीबन 3844 किलोमीटर की है, वो घटकर आधी क्यों हो जाती है? क्योंकि चीन मानता है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का अभिन्न हिस्सा है, वो दक्षिण तिब्बत उसे कहता है, इसलिए उसे वो अपने श्रेणी में रखता है। अक्साई चीन का बहुत बड़ा हिस्सा अपने हिस्से में वो रखता है और उसे वो विवादास्पद नहीं मानता। इसलिए चीन के अनुसार सीमा विवाद की जो लंबाई है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर की है, और भारत के अनुसार ये विवाद 3844 किलोमीटर की है। तो पहला मतभेद तो इस बात को लेकर है। भारतीय परिप्रेक्ष्य मैकमोहन लाइन के साथ शुरू होता है, जो 1914 में संपन्न हुआ शिमला में, जिसमें हम ऑल वी नो दैट द स्टेक होल्डर ऑफ द 3 countries were there in Simla: British India, China, and the representative of Tibet. They all sat together, tried to demarcate the boundary, the British India and China. And in this meeting, what it happened, that China refused to sign the agreement, and it said that it is the imperialistic approach of British India. They are forcing us to acquire the land which belongs to China. तो उसने साइन नहीं किए, लेकिन तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव एक ऑटोनोमस रीजन के हैसियत से आए थे, उन्होंने साइन किया और वो एक ऑफिशियल लाइन बन गया, एंड दैट इज द ऑफिशियल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एंड अकॉर्डिंग टू दैट द डिस्प्यूटेड boundary between the two countries spans almost 3,844 kilometers between the two. But that has not been recognized, that has not been accepted by China till today. It does not believe that McMahon line is the official line. That is the bone of contention between the two countries on the boundary dispute which still exists. चाहे वो ईस्टर्न सेक्टर का हो, वेस्टर्न सेक्टर का हो या मिडिल सेक्टर का हो। उसके बाद जब विवाद उत्पन्न होता है, हम जानते हैं कि 1960 के बीच में, 1960 में चीन के प्रधानमंत्री भारत आए थे, नेहरू जी ने उन्हें बुलाया था, और a major attempt was being taken to resolve the boundary dispute between the two countries. इसमें उन्होंने पैकेज डील की बात कही थी। पैकेज डील में शुरुआत में ये था कि अक्साई चीन वाला जो एरिया है, जो लद्दाख का एरिया है, विच बिलोंग्स टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डिस्प्यूट, वो भारत चीन को दे दे।
बदले में भारत और अरुणाचल प्रदेश जो ईस्टर्न सेक्टर है, विच चाइना क्लेम्स दैट इट इज ए पार्ट ऑफ साउदर्न तिब्बत, विल रिलिंक्विश, विच विल गिव इट टू इंडिया एंड एक्सेप्ट इट। और उसके अलावा चीन ने यह भी कहा था कि अगर स्थिति बनी, हिंट दिया था, कैटेगोरिकल नहीं था, बहुत ही डिसेप्टिव तरह का स्टेटमेंट उसने दिया था कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा भी हम ये कबूल कर लेंगे कि वो भारत का है, कटिंग द अक्साई चीन एरिया। अक्साई चीन एरिया को हटाकर जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ द इंडियन स्टेट, विच हैज बीन हिंटेड बाय द चाउ एन लाई, द प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर ऑफ चाइना, हु विजिटेड इन 1960 इन इंडिया। तो वो एक बहुत ही मजबूत अटेम्प्ट लिया गया था चाइना के द्वारा। ऑलमोस्ट फॉर 20 आवर्स ही सैट विद द डिफरेंट लीडर्स, मोस्टली विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का पार्लियामेंट में और बाकी जगह पर स्टेटमेंट था कि इफ आई एक्सेप्ट द अक्साई चीन इज अ पार्ट ऑफ तिब्बत, पार्ट ऑफ चाइना, द सेम डे आई विल नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज द कंट्री विल नॉट एक्सेप्ट दिस फैक्ट। तो उसके बाद वो बातचीत फेल हो गई और चाउ एन लाई जो एक मकसद के साथ आए थे कि बाउंड्री डिस्प्यूट हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं हो पाया और स्थिति उसके बाद से बिगड़ती चली गई। एंड ऑल वी नो व्हाट इट हैपेंड। उसी के बाद 1962 में लड़ाई भी होती है और 62 में लड़ाई के बाद जो सेम एरिया जहाँ पर अभी विवाद है, उसी क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्र में अक्साई चीन का जो एरिया है उसने चीन ने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद से लगातार निरंतर हर साल इंच बाय इंच, जिसे सलामी स्ट्रैटेजी कहा जाता है, अकॉर्डिंगली उसमें उसके आधार पर धीरे धीरे चीज़ों को अख्तियार करते गया। कभी कुछ वर्ग किलोमीटर, फिर कुछ इस तरीके से 19 किलोमीटर भीतर तक भारत में 1962 के बाद तक अपनी सीमा का विस्तार उसने किया। और स्थिति यहाँ तक आ गई कि 8 फिंगर्स जहाँ पर उसकी सीमा चौथे फिंगर पर रुकती है, वो उससे भी आगे बढ़ गया, जिसमें गलवान वैली तक उसकी सेना पहुँच गई और क्लेम करने लगी कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना। But India is also determined that it will not allow Chinese to occupy this area because it is very important. अब जब सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच में गलवान वैली और अक्साई चीन को लेकर इतना विवाद था, तो अब एक स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि आखिर अभी क्यों? Why did it happen now? After this Doklam, there was more or less peace and tranquility, and after that, 2 major informal meeting took place between the 2 great leaders. एक चाइना में वुहान में 2018 में हुआ और फिर 2019 में महाबलीपुरम में हुआ, जहाँ पर बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में दोनों देशों ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की और ये विश्वास दिलाया कि सीमाई क्षेत्रों पर किसी भी तरह की सरगर्मी नहीं बढ़ेगी, कोई हिंसा नहीं होगा और बातचीत का दौर चलता रहेगा जो 1988 से शुरू हुआ है। द बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में जब बातचीत 88 से शुरू हुआ, 93 में एक शक्ल लिया और 93 से लेकर अभी तक हम जानते ही हैं कि 22 राउंड की बातचीत हो चुकी है। रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला, लेकिन देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स वेयर बीइंग फिक्स्ड एंड विच हैज बीन फॉलोड बाय बोथ द कंट्रीज एंड अकॉर्डिंगली कि उसमें हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, एक दूसरे के कटसी को निभाया जाएगा, बातचीत के द्वारा समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। इंक्रोचमेंट और इनकर्सन की अगर आलोचना होती है कि चाइनीज़ फोर्सेस भारतीय सीमा में आ गए हैं या भारतीय फौज चाइनीज़ सीमा में आ गए हैं, तो बातचीत के द्वारा मिलिट्री स्तर की बातचीत होगी, डिप्लोमेटिक स्तर की बातचीत होगी, उसके द्वारा सुलझाया जाएगा। लेकिन व्हाई डिड दिस टाइम इट हैज़ बीन एग्रीवेटेड
and the violence took place, there are certain reasons and logic behind it. And the first thing, it has the two major reasons, and the major reasons are from 2013 to 2019, there has been a larger change on the perspective of India. In so far, the western sector is a concern. जो लद्दाख का एरिया है, अक्साई चीन का एरिया है, उसको लेते हुए भारत ने 1913 से लेकर जो सड़कों का निर्माण शुरू किया, जो चीज़ें बेहद मुश्किल थीं उसको आगे बढ़ाने का काम शुरू किया, और 19 तक आते आते यानी आज की तारीख तक जो जिस सड़क को लेकर चीन को मुसीबत हो रही है, वो चीज़ें बन गई। अब हमारे भारी भरकम आर्टिलरी और सेना बड़ी आसानी से उस मुहाने तक पहुंच सकते हैं जहां चीन की सेना है। तो चीन को ये बड़ा ही तकलीफ हुआ कि ये कैसे हो गया, ये भारत ने ऐसा क्यों किया, और उससे बराबरी की बात आने लगी। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण समस्या यहाँ पर सामने उभर कर आई वो यह थी कि भारत का राजनीतिक स्वरूप जो 88 या 62 के युद्ध के बाद से 70, 80, 90 के दशक में या उसके बाद भी रहा, उसमें गंभीर रूप से परिवर्तन देखे गए। इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हमने देखा होगा कि बुनियादी सोच में परिवर्तन दिखाई दिया कि आप द फर्स्ट टर्म आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ही वेंट टू Bhutan, then he went to Nepal, and after that he went to China and some other countries. That indicated the change of the course in the diplomatic exercise of India. All we know that Himalayan frontiers, which includes before independence, Tibet, Sikkim, Bhutan, were major buffer zones between the two countries. And India had an ace over it. British India was much more stronger at the time. वो चीज़ें आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद हमारा जो डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज रहा या पॉलिटिकल विल रहा, वो कहीं ना कहीं पर फेल हुआ, और we started sliding down, we started losing the buffer zone which were in our control, and it went into the side of China. Tibet was a measure. Somehow we maintained Sikkim, and we made it one of the states of India, and Bhutan and Nepal also. Somehow Bhutan we have with our treaty of 1949, and again we revived the treaty in 2007. We maintain our diplomatic exercise in Bhutan, and the terms are still very good. But Nepal shifted away from the Indian strategic calculus and moved much closer to China. तो ये चीज़ें इस प्रधानमंत्री ने बड़े सलीके से की है। कई बार डिप्लोमेटिक सर्कल में, मीडिया में ये खबर छपती है कि भारत की विदेश नीति तो पूरी तरह से फेल हो रही है, नेपाल के साथ संबंध खराब हो गए, नेपाल के संसद में ये तीनों लिपुलेख और को लेकर एक नया कानून बन गया, लद्दाख में ये समस्या, चीन के साथ समस्या पैदा हो गई, पाकिस्तान आपका दुश्मन हो गया। तो ये जब when you become an assertive power, when you try to claim what you wanted to have, which is your legitimate claim, तो समस्या तो पैदा होगी, क्योंकि जो देश आपका प्रतिद्वंदी है, जो विरोधी है, वो बहुत ही मजबूत है, हर तरीके से, आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से और अन्य रूप में। तो वैसी परिस्थिति में समस्याएं तो दिखाई देंगी कुछ समय तक, अनलेस अंटिल फुल फ्लेज वॉर टेक्स प्लेस, तब स्थिति का पता चलेगा। लेकिन अभी तो कई महकमों में ये बात कही जाती है कि भाई भारत की विदेश नीति फेल हो गई है, कहीं ना कहीं हमने गलती नहीं हुई है, बल्कि हमने वो खोई हुई चीज़ों को, जो विगत में गलतियां हुई हैं,
उसको सुधारने की कोशिश में निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं और उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। और वो रोड़े बनकर सामने खड़ा है, चाहे वो नेपाल के रूप में सामने आ रहा हो या पाकिस्तान के रूप में सामने आ रहा हो या चीन अन्य क्षेत्रों में वो समस्या पैदा कर रहा हो, तो इससे निजात पानी होगी। अब हम अगर भारत चीन संबंध को बारीकी से समझने की कोशिश करें तो ये जानने की कोशिश किया जा सकता है कि व्हाट आर द मेजर कंसर्न्स ऑफ चाइना, व्हाट डज चाइना एग्जैक्टली वांट फ्रॉम इंडिया, व्हाट आर द थ्रेट परसेप्शंस फ्रॉम इंडिया. The most important threat perception which China believe is that the alliance between India and America. You take out the history from 1949 till today, you will be finding that whenever India and America becomes a close partner, close alliance, the trouble started in China, and they have come to the terms, either extending hand of friendship to India, और वो कुछ ऐसा होने लगता है चीन में कि वो भारत से अपनी दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश करता है या प्रतिक्रियात्मक होकर भारत पर दबाव डालने की कोशिश करता है। इस बार भी हुआ। पिछले 2 सालों 3 सालों में भारत अमेरिका के संबंध स्ट्रैटेजिक कैलकुलस में काफ़ी ऊंचाई पर चला गया। क्वाइट के बनने के बाद जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मसले हैं अफगानिस्तान तक में अमेरिका ने भारत को एक महत्वपूर्ण कमान देने की बात कही और साथ में अभ्यास करने की बात कही। तो चीन को सबसे बड़ा डर ये लगता है कि भारत और अमेरिका अगर साथ में हैं तो चीन में कोई भी परिवर्तन की संभावना और आशंका बनने लगती है। तो सबसे बड़ा कारण तो ये है थ्रेट परसेप्शन का चीन का। दूसरा महत्वपूर्ण उसी से जुड़ा हुआ है वो है तिब्बत का मसला। ऑल वी नो दैट इफ यू रीड द हिस्ट्री ऑफ तिब्बत, except the Qing dynasty which started from 18th century by the middle of the 19th century, which was captured by Qing dynasty, the areas of Tibet. But before that, Tibet was an independent country. And not only independent country, it was so powerful, the lamas of Tibet were so powerful that they captured some of the areas of China as well as the adjoining areas like Arunachal and some part of Ladakh. They had their political spanning. They set up the political structure across India as well. जब चीन में क्रांति होती है 1949 में, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होता है, उसके बाद चीन की मंशा को समझने वाले भारतीय स्ट्रैटेजिक थिंकर्स बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चीन के इरादे नेक नहीं हैं। पटेल और नेहरू के बीच में अगर पत्रों का आदान प्रदान को पढ़ा जाए, समझा जाए, तो बहुत कैटेगोरिकली द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया had written to प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया and he cautioned him कि बी केयरफुल। सुभाष चंद्र बोस जब 1947 में 46 या 47 में चाइना की यात्रा पर गए थे, उन्होंने अपने राइटिंग्स में कॉशन किया था कि चीन के इरादे नेक नहीं हैं। जबकि विचारधारा के आधार पर बहुत समानता थी, लेकिन उन्होंने भी चीन के इरादे पर कॉशन किया था। उसके अलावे आप यू टेक द नेम ऑफ एनी ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया एट द टाइम, लोहिया, जयप्रकाश नारायण और बाकी तमाम लोगों ने इस पर लिखा और प्रधानमंत्री को कॉशन किया, बट ही डिड नॉट रियलाइज द ट्रुथ एंड ही वेंट ऑन द वेव ऑफ हिंदी चीनी बाई बाई। What was surprising after independence, America wanted to contain China. Communism should not span from China to South Asia or Southeast Asia, and who could be the better than India to control it. So America extended its hand to India, and it also promised to give a permanent seat of the Security Council. आज हम 2 दिन पहले भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिली, उसके लिए हम खुशी मना रहे हैं।
लेकिन हमें तो अस्थायी सदस्यता मिल रही थी और वो भी चीन से बहुत पहले। लेकिन हमने उदारता दिखाते हुए, इसे उदारता कहें या भारतीय विदेश नीति में यथार्थ से अलग हटकर इसे मूर्खता कहा जा सकता है, कि हमने अपनी चीज़ को, अपने खाने की चीज़ को चीन के थाली में परोस दिया। और वी रिक्वेस्टेड अमेरिका दैट नो नो नो, वी डू नॉट डिजर्व, it is the Chinese are the more better claim for the seat of Security Council, and seat went to the China. This is how the modesty and generosity we have shown in our foreign policy, and the kind of reply which we have received after that. तो ये गलती हमारे तरफ से हुई है, और उस गलती का भुगतान भी किस रूप में हुआ है वो आज हम देख रहे हैं। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण थ्रेट परसेप्शन चीन का है वो तिब्बत है। माओ से तुंग ने कहा भी है कि चीन हैज़ अ पाम एंड इट इज़ अ 5 fingers, and he counted all the 5 fingers. Tibet is the most important one. Then he counted also Nepal, Bhutan, Sikkim, and Ladakh. These are the fingers of the China which he wanted to, with the time, to grapple with. So when Tibet was taken by China, it changed the complete geopolitics of this region. Completely changed the geopolitics of this region. India, China had 2 buffer zones. One was Tibet, another was Nepal. Once Tibet was occupied by China, Nepal automatically became the target, and gradually, through the slicing of Chinese approach, it also has been more or less with the time integrated, moving closer to China. तो अंग्रेज जब छोड़ के गए थे तो 2 बफर जोन थे, और दोनों जगह पर भारत की स्थिति बहुत मजबूत थी, तिब्बत में भी और नेपाल में भी। वो चीज़ हम छोड़ते चले गए। तिब्बत के लेने के बाद से उसका जो अदर इम्प्लीकेशंस है वो हॉरेंडस है। देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स बिकॉज ऑफ तिब्बत वी लॉस्ट आउट। हम सभी जानते हैं कि तकरीबन 57 नदियाँ, मोर देन 57 rivers flow from the Tibetan plateau. Almost 57 rivers flow from the Tibetan plateau, and they move to Central Asia, they move to Southeast Asia, they move to India, Pakistan, and Afghanistan as well. Almost 35% of the total population of the world get the fresh water from the rivers which flow from the तिब्बत। तो तिब्बत के लेने के बाद चाइना ने सबसे पहला काम क्या किया, उसने तिब्बत को 2 हिस्सों में बांट दिया। तिब्बत का जो बहुत बड़े हिस्से थे उसको चीन के अन्य प्रांतों के साथ इंटीग्रेट कर दिया, और एक तिब्बत ऑटोनोमस रीजन घोषित कर दिया जो ओरिजिनल तिब्बत का 1/3 हिस्सा है। एंड डिस्पाइट बिंग दैट इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ चाइना। अगर तिब्बत को हम चाइना का अंग मानते हैं तो दूसरा सिंकियांग के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है, जबकि उसका 2/3 हिस्सा चीन के अलग अलग स्टेट के साथ खंडित कर जोड़ दिया गया। सारी चीन के इंटरनल डायनेमिक्स को देखेंगे तो नॉर्थ और साउथ में कंप्लीट जियो इकोनॉमिक्स को लेकर डिवीजन है। नॉर्थ बहुत रिच है, प्रॉस्परस है, लेकिन इंडस्ट्रीज भी है, सारे इंडस्ट्रीज वहाँ एस्टैब्लिश हैं, लेकिन पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। दक्षिण, जिसे चीन का बहुत सारा हिस्सा, जो तिब्बत का बहुत सारा हिस्सा जोड़ दिया गया, वो वहाँ पर पानी का स्रोत है, और डैम्स बनाकर पानी के बहाव को उसने नॉर्थ की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। अब इसका खामियाजा क्या हुआ लॉन्ग टर्म में, व्हाट इट हैपन, कि ब्रह्मपुत्र नदी है जिसे यांगसी
चीन में तिब्बत में जाना जाता है, और वो नदी फिर बांग्लादेश आती है, असम से आगे बढ़ते हुए उसे मेघना कहा जाता है। 2000 से ज़्यादा किलोमीटर की लंबाई वाली ये नदी, जिसमें तकरीबन 1100 तकरीबन तिब्बत के रास्ते से गुजरती है, 900 के करीब भारत की भूमि पर गुजरती है, और 300 कुछ किलोमीटर की दूरी बांग्लादेश में होकर गुजरती है। तो ऐसी स्थिति में चीन ने अपर रिपेरियन कंट्री होने का फ़ायदा, यानी तिब्बत उसके पास है, उसने डैम्स बनाने शुरू कर दिए, और डैम्स का बहाव के चलते ब्रह्मपुत्र नदी के जो वॉल्यूम्स ऑफ वाटर है वो 100% से घटकर 35% हो गया है। आज ब्रह्मपुत्र नदी का 35% पानी ही भारत में आता है, और जिसे सूखे की स्थिति उत्पन्न होने का डर है। तो मल्टीफेरियस जो थ्रेट परसेप्शन इंडिया का है चाइना के अगेंस्ट में, वो तिब्बत को लेकर है। और तिब्बत को जब हमने इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना कबूल कर लिया, दूसरी भूल 2003 में वाजपेयी सरकार के द्वारा भी की गई, उस समय भी एक एग्रीमेंट के तहत बहुत क्लियर चिट चीन को दे दिया गया, और वी इंडोर्स द फैक्ट दैट तिब्बत इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। तो बातें हमारे डिप्लोमेटिक सर्कल से बिल्कुल ख़त्म हो गई, और हम उसी डर्रे पर चलने लगे। कांग्रेस रिजीम में आप देखेंगे कि भारत और चीन के बीच में जितनी भी संधियां 88 के बाद से हुई, 93 हो, 96 हो, 96, देन 2006, 7, 12, in most of the agreements our terms and conditions were completely disobeyed by China. हमने जो बातें कही, चाहे वो सीमा को लेकर हो, चाहे अन्य हमारे चिंताओं को लेकर हो, चीन ने उसे मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया, और इनकार करने के बावजूद भी वी फोर्स्ड टू साइन द एग्रीमेंट। लेकिन यही परिवर्तन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में परिवर्तन 2013 के बाद दिखाई देने लगा। चीन को शुरू में लगता था कि भारत के संसद में ये आवाज़ें उठती हैं, रेजोल्यूशन पास होता है कि अक्साई चीन का एरिया जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड एवरी इंच ऑफ द टेरिटरी वी विल टेक इट। नेहरू जी का एक बहुत ही बयान कि वहाँ पर ब्लेड भर भी घास नहीं उगता अक्साई चीन एरिया में, उसके लिए क्यों इतनी मारपीट की जाए। तो संसद में किसी कांग्रेस के पार्टी के सदस्य ने कहा था कि अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कि मैं अगर गंजा हूँ, अगर मेरे बाल नहीं है तो इसका मतलब क्या कि हमारे सर को कलम कर दिया जाए। तो पूरा संसद ठहाका लगाकर हंसा था, और नेहरू जी की सोच पर लोगों को तरस आई थी। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि किस तरीके से हमने अपने स्ट्रैटेजिक एडवांटेज को डिसएडवांटेज में समय के साथ बदलते चले गए, और उस पर निगाह दिया नहीं। और चीन के द्वारा एक फैब्रिकेटेड इनमी हैज़ बीन क्रिएटेड, और वो पाकिस्तान यानी एक जानबूझकर चीन ने एक दुश्मन देश भारत के सामने खड़ा कर दिया, और कहा कि तुम्हारा दुश्मन तो वो है, यू फाइट इट अगेंस्ट पाकिस्तान। डिफेंस एक्सपर्ट जितने भी हैं, अगर बातचीत करें तो आपको इस बात की ज़्यादा सच्चाई नज़र आएगी कि 2000 पहले तक जितने भी आर्म्स और एमुनिशंस हमारे पास थे, वो चीन से लड़ने में बिल्कुल सक्षम नहीं थे। यानी हम स्ट्रैटेजिक स्तर पर, डिफेंस स्तर पर ये मान कर चल रहे थे कि हमारा जो दुश्मन है वो पाकिस्तान है, क्योंकि वो सारे हथियार पाकिस्तान से ही लड़ने में सक्षम थे, सारी नीतियाँ, सारे सब कुछ। पहली बार ऐसा लगा चीन को कि 2014 से लेकर 2019 के बीच में, जिसमें बीच में डोकलाम जैसे स्टैंड ऑफ हुए, और बाद में अभी गलवान वैली में जो प्रॉब्लम चल रहा है, चीन को पॉलिटिकली ये कन्विंस हो गए
कि नाउ द regime has changed in India. They are not going to be tutored. They are not going to toe the line of China, which has been doing it for the last almost 6-7 decades. अब इसमें परिवर्तन आ गया है. अब बातचीत होगी. अगर परिवर्तन होगा तो लड़ाई के द्वारा ही होगा, युद्ध के द्वारा ही होगा, फोर्स के द्वारा ही होगा. तो इसके कारण से जो आज परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जो रंजिश दिखाई दे रही है, जो क्लैशेस दिखाई दे रहे हैं, जो वायलेंट दिखाई दे रहा है, वो इसी सोच का नतीजा है. अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि ठीक है, स्थिति तो विकराल है, स्थिति गंभीर है. अब इस गंभीर स्थिति में अगर युद्ध होता है, दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है, तो क्या परिस्थितियां बन सकती हैं? क्या पहले तो ये समझ लें कि युद्ध होगा भी, और होगा तो क्या नतीजा चीन के लिए निकलेगा, क्या नतीजा भारत के लिए निकलेगा? हम सभी जानते हैं कि चीन इज इन द रेस ऑफ बिकमिंग द सुपर पावर. आफ्टर दिस पैंडेमिक it has been criticized by the many countries of the world, not merely America, but many European countries, and its close European partner, Chinese close European partners, they have also castigated and hold it responsible for spreading the virus, not intimating on the time. Had China done it, the kind of scenario which looks today would not have been there. तो ये बातें WHO और बाकी सारी जगहों पर उठी और उसका तहकीकात भी हो रहा है. भारत ने कोई भी टिप्पणी यूरोपीय देशों या अमेरिका के निर्देश पर या सुझाव पर नहीं किए. चीन की कोई आलोचना नहीं की. यहाँ तक कि शुरुआती दौर में भारत ने मेडिकल सपोर्ट की भी बात कही कि अगर किसी तरह की ज़रूरत है तो भारत मदद देने के लिए तैयार है. तो उस मुकाम पर भारत की तरफ से कोई भी ऐसा संकेत नहीं दिया गया कि भाई हमारे संबंध में कोई खटास या कोई दुराव है. उसके बावजूद भी ये युद्ध की स्थिति क्यों बनी? युद्ध की स्थिति इसलिए बनी कि चीन चारों तरफ से घिरने के बाद एक तो थियरी ये है कि अपने इंटरनल पॉपुलेंस को कन्विंस करने के लिए जब भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो चीन स्ट्रैटेजिक गेन करने की कोशिश करता है और जनता के बीच में उस दुराव और भ्रम को दूर करने की कोशिश करता है कि हम नेशनलिस्ट अप्रोच के साथ खड़े हैं. और इसी कारण से उसने हांगकांग, ताइवान, साउथ चाइना सी और मुख्यतः भारत के साथ युद्ध की स्थिति उत्पन्न करने के लिए पैदा किया. और आज वो उसी के नक्शे कदम पर खड़ा है. तो क्या युद्ध चीन के फायदे में होगा? जैसा मैंने कहा कि 2035 तक का खाका चीन ने बनाया है और वो 2035 तक में वो अपने आप को आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश के रूप में लाकर खड़ा करने की स्वप्न देखा है, उसके स्केचिंग भी की है. ऑल वी नो दैट इफ इट इज ट्रू एंड चाइना इज मूविंग ऑन द सेम लाइन, अगर भारत के साथ युद्ध होता है तो नुकसान चीन को बहुत ही गंभीर होगा. ये हम मानते हैं कि अगर डिफरेंट चीज़ों का कंपैरेटिव एनालिसिस करें, चाहे वो आर्म्स एम्यूनिशन का हो, न्यूक्लियर आर्सेनल का हो, मिसाइल्स का हो, फाइटर प्लेन्स का हो, सैनिकों का हो, उसमें चीन का पलड़ा भारी है. चीन काफ़ी शक्तिशाली है, आर्थिक रूप से हमसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, उसकी सेना बड़ी है. लेकिन सच्चाई ये भी है कि भारत की स्थिति उतनी कमज़ोर नहीं है जो 1962 में थी या उसके बाद. भारत मजबूत स्थिति में खड़ा है और जहाँ पर आज युद्ध की आशंका व्याप्त है वहाँ पर भारत की स्थिति बहुत मजबूत है. कम से कम ये सड़क बनाने के बाद जिस पर चीन अंकुश लगा रहा था, भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई है. हमारे आर्मी जनरल और बाकी दुनिया के
डिफेंस एक्सपर्ट भी इस बात को कहते हैं कि पहाड़ी युद्ध में भारतीय कौशलता बेहतरीन है, और अगर चीन से इसकी तुलना की जाए तो ज़्यादा सक्षम है। उसके पास हथियार ज़्यादा हैं, उसके पास आर्म्स और एम्यूनिशन ज़्यादा हैं, लेकिन मानवीय कुशलता और लड़ने की रणनीति हमारी बेहतर है। तो नुकसान दोनों को होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नुकसान भारत को नहीं होगा। भारत वर्ल्ड पावर के रेस में नहीं है। अगर किसी कारणवश चीन के सामरिक समीकरण को हम अगर जानते हैं, समझते हैं, तो ऑल वी नो दैट इंडिया इज नॉट नंबर वन एडवर्सरी और एनिमी ऑफ चाइना. It is always the Western countries, it is America. So if China is bogged down or somehow gets engaged in a scuffle with India, which leads to war, then its major attempt of becoming the superpower gets defeated, and at least it will be put on hold for at least some more years and decades. तो चीन का जो स्वप्न है वो अधूरा रह जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण। तो इस बात से उम्मीद जताई जा रही है कि लिमिटेड वार भले हो, फुल फ्लेज वार की संभावना नहीं दिखाई देती भारत और चीन के बीच में। दूसरा, अगर ये मान लें कि अगर युद्ध होता है तो भारत की स्थिति क्या होगी। भारत ने 1971 के बाद जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 75, हमारे साथ चीन के 1962 के बाद से युद्ध नहीं हुए हैं, जबकि चीन की लड़ाई 1969 में रूस के साथ हुई, उसके बाद वियतनाम में भी चीन भिड़ा। तो चीन उसके बाद भी संघर्षों में जूझा रहा, और आज भी ताइवान में अमेरिका के साथ युद्ध की स्थिति है। अगर किसी कारणवश, जैसा कि चीन हमेशा कहता है कि भारत के साथ हम 2 फ्रंट खोल देंगे, यानी एक पाकिस्तान का फ्रंट और दूसरा चीन का फ्रंट अगर एक साथ होगा तो भारत के लिए स्थिति बड़ी खतरनाक हो जाएगी। क्या यही बात चीन के साथ लागू नहीं होती? अगर किसी कारणवश जिस तरीके से एग्रेसिव नेचर के तहत चाइना में, ताइवान में स्थिति बन रही है, अमेरिकी फ्लीट वहाँ पर स्थित है, अमेरिका किसी कीमत पर चीन की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर कॉन्फ्लिक्ट दोनों तरफ से शुरू हो जाता है, एक तरफ गलवान वैली में भारत चाइना युद्ध में संलग्न है, और दूसरी तरफ चीन और अमेरिका ताइवान में, हांगकांग में परिवर्तन से भी यूरोपीय देश, अमेरिका विशेष रूप से चिंतित है। तो अगर ये फ्रंट चीन के भीतर खुल जाते हैं तो उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर बन सकती है। आज ये भी हम जानते हैं कि भारत में सेशनिस्ट फोर्सेस चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो या अन्य जगहों पर वो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन चीन में तिब्बत का मुद्दा आज भी उतना ही जीवंत और जिंदा है। more than 95% of the Tibetan still they do not believe that we are the part of China. They want to have their own separate entity. They want at least autonomous region of Tibet. They want to maintain it. और नहीं तो एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। मिडिल पाथ दलाई लामा का नहीं मानने के बाद चीन, वहाँ के युवाओं में आक्रोश है। दलाई लामा तकरीबन 85 साल के कुछ दिनों बाद हो जाएंगे। अगर किसी कारणवश दलाई लामा के आए बिना, यानी तिब्बत बुलाए जाने के पहले अगर उनका देहांत होता है तो वो चीन में यूथ एग्रेशंस काफ़ी गंभीर बन सकता है। और हम जानते हैं कि 1962 के पहले 56-57 में खम्पा विद्रोही जो चीन अमेरिका के द्वारा ट्रेन किए गए थे और चीन तिब्बत की सीमा पर भेजे गए थे, उसमें भारत का सहयोग अमेरिका ने मांगा था। अगर भारत ने दिया होता तो हो सकता था कि तिब्बत का शक्ल कुछ दूसरा होता, लेकिन नहीं दिया गया, तो वो मूवमेंट को दबा दिया गया। वो डर चीन को आज भी है। माओ से तुम कहा करते थे कि तिब्बत
चीन का जिह्वा है, इट इज़ लाइक ए टिथ विच प्रोटेक्ट्स द टंग. If the teeth are strong, then the tongue is safe enough. If there is a weakening of the teeth, then the tongue is always under threat. तो बाहरी शक्तियों का जो डर चीन को है वो मल्टी फ्रंट जैसे हम कहते हैं कि वो शुरुआत होने का डर है, वो चीन में ज़्यादा है. सिंकियांग का एरिया पॉपुलेशन ट्रांसफ़र के बाद भी वहाँ पर लोग उद्वेलित हैं, चीन में रहना नहीं चाहते. चीन से विद्रोह की मुद्रा में केवल फोर्स के द्वारा उनको दबाया जा रहा है. तो ये ऐसे सेक्शन हैं चीन में जो वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम से तंग आ चुके हैं और विद्रोह के मुद्रा में हैं. तो इंटरनल डायनेमिक्स भी चीन का बहुत अच्छा नहीं है. तो युद्ध अगर होता है किसी कारणवश और वो एग्रीवेट होकर फुल फ्लेज वार में कन्वर्ट होता है तो हानि दोनों देशों की होगी, क्योंकि भारत कोरोना पैंडेमिक की वजह से आर्थिक बदहाली में है. इसमें कोई बात छिपाने वाली नहीं है. हम सभी जानते हैं कि आर्थिक प्रगति का दर बहुत घट गया है और युद्ध होता है तो स्थिति और भी गंभीर बन सकते हैं. ट्रेड रिलेशन भी जो दोनों देशों के बीच में है वो भी एक गंभीर संकट पैदा कर सकता है. हम जानते हैं कि हम अगर चीन के उत्पादों का बहिष्कार करते हैं तो इसका असर चीन पर भी होगा, लेकिन वो असर उतना गंभीर नहीं होगा जितना गंभीर भारत पर दिखाई देगा. क्योंकि भारत मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, वी नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक एज वेल. कि हम ये कह दें कि चीन के सामानों के बहिष्कार से हम अति उत्साह राष्ट्रवादी बन जाएंगे और हमारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, तो ये गलतफहमी होगी. जिस तरीके से चीन का ट्रेड हमारे भीतर घुस चुका है, हमारे आर्थिक व्यवस्था का एक आधारभूत ढांचा बन चुका है. मेक इन इंडिया भी, अगर इसका 2-3 एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करेंगे. सोलर एनर्जी हमारा एक महत्वपूर्ण आयाम है, इन विच द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड in 2015 climate conference that we will generate more than 175 gigawatt of energy from the green sources, and one of the leading green sources is solar energy. सोलर एनर्जी का 90% पार्ट ऊर्जा चीन से आता है और यही कारण है कि कोरोना के समय वो चीज़ें नहीं आ रही हैं तो उसकी प्रगति धीमी पड़ गई है. उसी तरीके से सब्सिडरी टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी मोबाइल और बाकी सारी चीज़ें 80 से 90% चीन पर डिपेंडेंट हैं. स्मार्ट सिटी और बाकी तमाम चीज़ों पर जो हम आर्थिक प्रगति के द्वारा एक मॉडल तैयार करने जा रहे हैं वो मेक इन इंडिया का, उसका बहुत सारा कंपोनेंट चीन आधारित है. तो निश्चित रूप से अगर युद्ध की स्थिति बनती है और व्यापार को सदमा पहुंचता है, ट्रेड रिलेशन को, जो कि अभी तक नहीं हुआ है. क्लासेस डोकलाम के बाद भी व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि बोथ द कंट्रीज आर वेरी प्रैग्मेटिक एंड मैच्योर इनफ कि पॉलिटिक्स will not spoil the economic terms between the two countries. लेकिन इस विवाद के बाद अगर जिस तरीके का वातावरण बन रहा है और आर्थिक ढांचे को अगर तोड़ा जाएगा, तंग होगा, तो दोनों देशों को नुकसान होगा. चीन को नुकसान होगा लेकिन उससे बड़ा नुकसान भारत को होगा. तो इन तमाम दृश्यों को देखने के बाद what do we think about it? There is situation is a very grim. The PLA, the head of the PLA is the president of China, who is the commanding officer of the PLA, who is the chief of the party, is Xi Jinping. His perception, because what has happened in the last few days is not being done by the order of any military leader. Definitely it has been done with the consent of the Xi Jinping. जो चीज़ भी हुआ है गलवान वैली में, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो लोकलाइज वॉरफेयर है या किसी आर्मी के डिसीजन के कारण से हुआ है. ये पॉलिटिकल डिसीजन है और सारी बातें PLA चीफ
यानी जी जिनपिंग के तरफ से आ रही हैं। तो अगर उनकी मंशा ये है कि हम भारत के साथ लिमिटेड वॉर के लिए पूरी तरह से आमादा हैं, तो निश्चित रूप से ये गंभीर स्थिति बन सकती है दोनों देशों के लिए, और उस पर उसका समाधान भी पॉलिटिकल तरीके से ही संभव होगा। हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मेजर जनरल लेवल की वार्ता दोनों देशों के बीच में हुई है, वो सफल नहीं हुई। तो अब पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़रूरत है, डिप्लोमेटिक तरीके से। डिप्लोमेसी भी उसका एक महत्वपूर्ण अंग होगा, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप डायरेक्टली बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना नीड टू टॉक टू ईच अदर एंड ट्राई टू रिजॉल्व द इशू, क्योंकि दोनों देशों के हित में ये बात नहीं है कि युद्ध का वातावरण बनाया जाए या युद्ध दोनों देशों के बीच में हो। युद्ध होगा तो निश्चित रूप से चीन का जो लंबा पाइपलाइन है 2035 का, वो तो निश्चित रूप से टूट जाएगा, क्योंकि भारत अगर आप 1987 के स्कफल को अगर याद करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भारत के करीब 80 सैनिक मारे गए थे, उससे 5 गुना ज़्यादा सैनिक नाथुला पास पर चीन के मारे गए थे। वही समीकरण यहाँ पर भी गलवान वैली में भी दिखाई दे रहा है कि अगर युद्ध होता है तो जिस तरीके से भारतीय सेना वहाँ पर अपनी संख्या बढ़ा चुकी है, वायु सेना भी वहाँ पर तैनात है, चाइनीज़ फोर्सेस की संख्या भले ही ज़्यादा हो लेकिन वहाँ तक पहुँचने और आर्म्स और आर्टिलरी को लाने में, भारत से युद्ध करने में हताहतों की संख्या चीन की तरफ ज़्यादा होगी। अगर ये मैसेज पूरी दुनिया में जाता है कि डोकलाम में भी जो मैसेज दुनिया में गया था, ठीक है, दोनों अलग अलग क्लेम किए कि भारत की सेना वापस गई, भारत ने कहा कि चीन की सेना वापस गई, लेकिन इतना तो निश्चित था कि पहली बार आंख से आंख मिलाकर चीन के सामने भारत आकर खड़ा हुआ दिखाई दिया, और खड़ा होने के बाद चीन को भी ये महसूस हुआ कि अब केवल डंडे के बल पर भारत को दबाया नहीं जा सकता है जो पहले हुआ करता था। और यही कारण था कि वुहान में और महाबलीपुरम में बड़े स्तर पर दोनों नेताओं के बीच में डिप्लोमेटिक मीटिंग हुई और एक खाका बनाने की कोशिश की गई। अगर वो खाका टूटता है, युद्ध की स्थिति बनती है, तो दोस्तों निश्चित रूप से दोनों देशों के लिए घातक होगा। चीन के लिए ज़्यादा घातक होगा, क्योंकि वो मठाधीश बनने की कोशिश में है, जो भारत की कोशिश नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे आयाम हैं, चूँकि दोनों देश के बीच में इतने सारे विवाद हैं। पूरी दुनिया की राजनीति एशिया की हो गई है, एशियन वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, उसमें भारत का कितना स्टेक है, चाइना वो देना नहीं चाहता है। कई अलग अलग स्वरूप हैं जो देखने के लिए आप की दृष्टि आपके पास है। आप लिटरेचर हर दिन 10 न्यूज़पेपर में कई लिटरेचर उभर कर सामने आ रहे हैं, उसे पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। लेकिन मुख्यतः मैं जो इस बातचीत में यही बताना चाह रहा था कि चीन का थ्रेट परसेप्शन इंडिया के अगेंस्ट में क्या है और भारत का थ्रेट परसेप्शन चाइना के अगेंस्ट में क्या है। दोनों देश एक दूसरे को दुश्मन के रूप में क्यों देखते हैं, और सीमा विवाद को लेकर मैकमोहन लाइन को चीन क्यों नहीं मानता, और LAC जो कोई डिमार्केटेड लाइन नहीं है, कोई स्पष्ट लाइन नहीं है, जिस क्षेत्र में लड़ाई हो रही है वो बर्फीली जगह है, जाड़े में बर्फ़ जम जाता है, गर्मियों में पानी हो जाता है। अब पानी में रेखा खींचना कि ये डिमार्केटेड लाइन है बहुत ही मुश्किल बन जाता है। इसलिए चीन की सेना कभी इधर आगे आ जाती है, कभी भारतीय सेना चली जाती है। तो ये मुख्यतः विश्वास की कमी का कारण है, ट्रस्ट डेफिसिट की कमी का कारण है। हम अगर जब तक बड़े स्तर पर, पॉलिटिकल स्तर पर इस बात को कबूल नहीं कर लेते कि हमें बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, जैसा कि 1960 में चीन के प्रधानमंत्री भारत आए थे, एक मंशा के साथ आए थे, इसमें कोई दो मत नहीं है कि पूरे पॉलिटिकल विल पावर के साथ आए थे। डेंग ये माओ से तुंग के निर्देश पर आए थे और कोशिश थी
कि बाउंड्री डिस्प्यूट को ख़त्म कर लिया जाए। पैकेज डील था, ठीक है, पैकेज डील भारत को पसंद नहीं आया, लेकिन आज भी उसी तरीके का कोई नया आयाम विकसित किया जा सकता है। दोनों देशों के पास महत्वपूर्ण और मजबूत लीडरशिप है, जिसकी बात दोनों देश के जनता मान सकते हैं, मानेंगे भी, और वो दुनिया के लिए एक नायाब व्यवस्था होगी, क्योंकि दोनों के सिविलाइजेशनल देश हैं। बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स भी हैं। बहुत सारे, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि चाइनीज आर वेरी सेंटिमेंटल, इफ यू सपोर्ट देम इन द मोमेंट ऑफ क्राइसिस दे कैन डू एनीथिंग फॉर यू। तो दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो भारत को गुरु भूमि भी कहते हैं कि भारत जो है, क्योंकि ज्ञान जो आया है वो भारत की भूमि से आया है। तो लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, I'm not talking about the political system, I'm talking about the feelings of the people, sentiments of the people of China. They believe that India is a Guru Bhumi, and Guru Bhumi means knowledge is flowing from this land. तो कई common factors हैं, we need to cement them, we need to identify them, but the blockade is the political system of China, the aggressive nature of China. It wants to be the superpower, Asian superpower initially, and later on the world superpower, and do not want to share the power between the two countries, मतलब with India, कि भारत को वो किसी तरीके से कोई तवज्जो नहीं देना चाहता। पर्ल ऑफ स्प्रिंग के तहत वो भारत को घेरना चाहता है। सीपेक के द्वारा वो अपनी सीमाओं को पाकिस्तान से होते हुए मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक ले जाना चाहता है। ओबीआर को कहता है कि वो इकोनॉमिक वेंचर है, लेकिन कुछ ही महीनों में, सालों में वो दिखाई देता है कि वो तो मिलिट्री वेंचर है। श्रीलंका इस बात का ताबीज है। मलेशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया ये तो बहुत ही गंभीर सैनिक मामला है। तो अंडर द गार्ब ऑफ इकोनॉमिक ट्रेड you are trying to create a military base in the different parts of the world. तो ये सोच, कॉलोनियल सोच, इंपेरियलिस्टिक सोच के तहत अगर आप भारत को घेरने की कोशिश करेंगे तो बाउंड्री डिस्प्यूट की संभावना कहाँ से बन पाएगी। तो पहले तो राजनीतिक जो सोच है उसमें ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी लानी होगी कि आप सीधे मन से सही तरीके से बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि आप शुरू से धोखा देते आ रहे हैं। तिब्बत को लेकर आपने कहा, जब 1947 में एग्रीमेंट होता है तो आप पीसफुल एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तिब्बत को ऑटोनोमस रीजन बनाने की बात करते हैं। उसके बाद से अचानक आप तिब्बत पर हमला कर देते हैं। 1950 में तिब्बत को हड़प लेते हैं और ये कहते हैं कि दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। तो ये साथ में ये डुप्लिसिटी नहीं चलेगा, और वो डुप्लिसिटी के साथ भारत को टैकल करना बहुत मुश्किल है। भारत भी अब वो भारत नहीं है जो चीन के हर डिक्टेट्स को मानने के लिए बाध्य हुआ करता था। एग्रीमेंट्स में कुछ लिखा गया और भारत ने जब उस पर अतिरंजना जाहिर की तो भारत को दबाव डालकर उसे साइन किया गया। ये इट हैड हैपेंड इन 1993 ड्यूरिंग नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। ही अपोज्ड इट कि दैट क्लॉज शुड नॉट बी देयर व्हाइल रिजॉर्टिंग द बाउंड्री डिस्प्यूट, बट इट वाज नॉट रिमूव्ड बाय चाइना। बोला कि ठीक है, हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे लेकिन इसको रहने देते हैं, एंड इंडिया वाज फोर्स्ड टू साइन इट। सो देयर आर मेनी इंस्टांसेस, बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि पहले भारत की सरकार चीन के डिक्टेट्स को पता नहीं किस कारण से मानने के लिए लगातार बाध्य होती थी। वो स्थिति अब नहीं है, और यही कारण है कि आज पहले 2017 में डोकलाम में और फिर गलवान वैली में स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि अक्साई चीन का एरिया जहाँ से सीपेक कुछ ही माइल्स होकर जाता है वो इंडियन रडार पर होगा। भारत की सेना वहाँ तक है जो चीन को महत्वपूर्ण हानि पहुंचाने में सक्षम है। वो एरिया सिंकियांग और तिब्बत को जोड़ता है, वो भी भारत के रडार पर है। तो चीन का पूरा स्ट्रक्चर, आप भारत को जितना हानि पहुंचाते, लेकिन भारत के पास भी वो सारे हथियार और सामान हैं जो आपको एक महत्वपूर्ण विश्व शक्ति बनने से रोक सकता है। दैट इज ऑल अबाउट इट आई वॉन्टेड टू से। विद दिस आई थिंक
I will end up my talk. Thank you.